میں نے سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ بنائے تو اب میں روزانہ شہر کی کسی نہ کسی بڑی بوتیک پر جاتی، وہاں 2-3 پیارے پیارے ڈریس لے کر ٹرائی روم میں گھس جاتی، کپڑے پہن کر ٹرائی کرتی، وہیں اچھی اچھی تصویریں بناتی اور پھر بنا کچھ لیے واپس الف جاتی اور یہ تصویریں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتی۔ لیکن ایک دن جیسے ہی میں یونیورسٹی پہنچی، ہر اسٹوڈنٹ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس آئی، اپنا فون میرے آگے کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیا ہے؟ فون دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میری زندگی ہمیشہ سے عام سی رہی ہے۔ ایک عام سی یونیورسٹی کی لڑکی، ایک عام سا گھر اور معمولی سی خواہشیں تھیں، نہ کوئی خاص شان و شوکت، نہ بڑے برانڈز کی چاہت، نہ ہی وہ چمک دمک جسے دیکھ کر باقی لڑکیاں رشک سے بھر جاتی ہیں۔ مگر دل کے کسی کونے میں ہمیشہ یہ خواہش پلتی رہی کہ لوگ مجھے بھی دیکھیں، پہچانیں اور میرے بارے میں بات کریں۔ بس یہی خواہش آہستہ آہستہ میرے اندر آگ کی طرح بھڑکنے لگی۔ یونیورسٹی میں میرا زیادہ تر وقت کتابوں اور کلاس میں گزر جاتا تھا۔ شروع میں مجھے لگتا تھا کہ پڑھائی ہی سب کچھ ہے، لیکن جب میں دیکھتی کہ میری کلاس کی لڑکیاں انسٹاگرام اور فیس بک پر اپنی تصویریں ڈالتی ہیں اور دوسرے دن سب کے لبوں پر انہی کا ذکر ہوتا ہے، تو میرے دل میں ایک عجیب سی خلش جاگتی۔ کوئی کہتا کل مریم کی پوسٹ دیکھی، کتنی سٹائلش لگ رہی تھی، کوئی کہتا فلانے ڈریس میں زارا تو بالکل ماڈل لگ رہی تھی۔ میں مسکرا کر سنتی رہتی، لیکن اندر ہی اندر میری ذات خاموشی سے مان پڑنے لگتی۔ یہ سوشل میڈیا کی چکا چون اور چمک مجھے بہت اچھی لگتی، میری آنکھوں کو خیرہ کرنے لگتی۔ بالآخر ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے بھی اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے۔ میں نے انسٹاگرام پر نیا پروفائل بنایا۔ شروع میں ڈرتی رہی کہ شاید کوئی لائک ہی نہ کرے، کوئی دیکھے ہی نہ۔ پہلی تصویر میں نے اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھ کر لی تھی، ایک عام سی تصویر کی، بال بھی ٹھیک سے سنوارے نہیں تھے، لیکن جب میں نے اپلوڈ کی اور چند منٹ بعد 2-3 لائکس آئے تو مجھے ایک عجیب سا جوش محسوس ہوا، جیسے کوئی انجانی دنیا میرے لیے دروازے کھول رہی ہو۔ میرے خون کی گردش تیز ہو گئی اور آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ اگلے دن یونیورسٹی میں میری ایک کلاس فیلو نے مسکرا کر کہا، ارے تم انسٹا پر ہو، کل کی تصویر اچھی تھی۔ میں نے حیران ہو کر اس کی دیکھا، دل ہی دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، مطلب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ شوق بڑھتا گیا، میں نے محسوس کیا کہ جتنی اچھی تصویر ہوگی اتنی ہی تعریف ملے گی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میرے پاس زیادہ اچھے کپڑے نہیں تھے، گھر کے حالات ایسے نہ تھے کہ روز نیا ڈریس خرید سکوں، بس وہی 2-4 سوٹ جو کبھی شادی بیاہ پر پہنے جاتے تھے۔ ایک دن میں اپنی دوست کے ساتھ شہر کی بڑی بوتیک گئی، وہ اپنی کزن کے لیے ڈریس دیکھ رہی تھی اور میں بس یوں ہی گھوم رہی تھی۔ اچانک میری نظر ٹرائی روم پر پڑی اور میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح کون گیا، کیوں نہ میں یہاں ڈریسز ٹرائی کر کے تصویریں بنا لوں۔ شروع میں مجھے شرم سی آئی، دل میں ہچکچاہٹ بھی کی، لیکن پھر میں نے 2 خوبصورت سے ڈریس لیے اور ٹرائی روم میں گھس گئی۔ جیسے ہی میں نے وہ برانڈڈ کپڑے پہنے اور آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، مجھے لگا جیسے میں بدل گئی ہوں۔ آئینے میں کوئی اور ہی لڑکی کھڑی کی، پرکشش پراتماک اور بالکل ویسی جیسی میں سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو دکھانا چاہتی تھی۔ میں نے جلدی اپنے فون سے کئی تصویریں بنائیں۔ اس دن جب میں نے وہ تصویریں اپلوڈ کی، لائکس اور کمنٹس کی بارش ہو گئی۔ کسی نے کہا، واہ کتنی ماڈرن لگ رہی ہو، کسی نے دل والا ایموجی بھیجا اور کچھ تو براہ راست میسج کرنے لگے۔ میں تو اندر سے جھوم اٹھی، اتنی تعریفوں کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اب یہ میرا روز کا معمول بن گیا۔ میں روزانہ شہر کی کسی نہ کسی بڑی بوتیک پر جاتی، 2-3 ڈریس لیتی، ٹرائی کرتی، تصویریں بناتی اور پھر بنا کچھ خریدے واپس آ جاتی۔ بوتیک والے شروع میں گھورتے، لیکن پھر عادی ہو گئے، مجھے بھی یہ عادت لگ گئی۔ ایک انجانی لذت تھی اس کھیل میں، جیسے میں کسی خواب کی دنیا میں رہ رہی ہوں۔ یونیورسٹی میں بھی میری شخصیت بدل گئی تھی۔ جو لڑکی پہلے پیچھے رہتی تھی اب سب کی توجہ کا مرکز بننے لگی۔ لڑکیاں مجھ سے پوچھتے یہ ڈریس کہاں سے لیا، اور میں مسکرا کر کہہ دیتی بس شاپنگ کرتے ہوئے یوں ہی پسند آ گیا تو لے لیا تھا۔ اندر سے میں جانتی تھی کہ حقیقت مختلف ہے، مگر سچ بتانے کی ہمت نہیں تھی۔ میرے فالوورز تیزی سے بڑھ رہے تھے، دن بہ دن میرے اندر شہرت کی پیاس بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب تو میں گھنٹوں تصویروں کے لیے پوز بناتی، روشنی ایڈجسٹ کرتی اور مختلف فلٹرز استعمال کرتی۔ ہر نئی پوسٹ پر درجنوں کمنٹس آتے جو میری تعریف پر مشتمل ہوتے اور میں ان سب کو بار بار پڑھتی۔ یہ سب کچھ کسی نشے سے کم نہ تھا، لیکن نشہ کوئی بھی ہو ہمیشہ عارضی ہوتا ہے اور اس کے پیچھے زہر چھپا ہوتا ہے۔ اس وقت مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا، میں بس یہ سوچتی تھی کہ یہ سب ہمیشہ ایسے ہی رہے گا اور سب یوں ہی میری تعریف کرتے رہیں گے۔ مجھے یاد ہے ایک دن خاص طور پر عجیب تھا۔ میں ایک مشہور بوتیک میں گئی تھی جہاں ہر ڈریس کسی خواب سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے ایک ریڈ کلر کا فراق ٹرائی کیا اور جیسے ہی آئینے میں خود کو دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ میری سب سے بہترین تصویر ہوگی۔ میں نے مختلف اینگل سے درجنوں تصویریں کھینچیں۔ اس وقت مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کوئی اور بھی میرے ساتھ ساتھ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی ایسا جو میرے ہر لمحے کو محفوظ کر رہا تھا، مگر میرے علم میں نہیں تھا۔
अब ये दिन मैं यूनिवर्सिटी वापस आई तो दोस्तों की महफिल में सब हंसी मजाक कर रहे थे, कोई पढ़ाई का जिक्र कर रहा था, कोई वीकेंड की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन मेरी सोचें बस इंस्टाग्राम पर चल रही थी। कितने लाइक्स आए होंगे, किसने कमेंट्स किए होंगे। मुझे लगता था यही कामयाबी है। मेरी माँ कभी कभी मुझे कहती, बेटा ये सोशल मीडिया पर इतना वक्त ज़ाय ना किया करो, असल जिंदगी अपनी पढ़ाई है। मैं बस मुस्कुरा देती, सोचती कि वो पुरानी सोच की हैं। लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है उनके अल्फाज में वो वजन था जिसे मैंने कभी महसूस नहीं किया। इस वक्त तक मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मैं खुद को किस खतरे में डाल रही हूँ। मेरी मासूम ख्वाहिश शोहरत की थी, लेकिन शोहरत के इस खेल ने मुझे अंधे कुएं की तरफ धकेल दिया था। ये सब तो एक ख्वाब सा लग रहा था, लेकिन ख्वाब के साथ साथ अंधेरा भी बढ़ रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि जल्द ही वो अंधेरा मेरे सामने आकर खड़ा होने वाला है। और फिर वो दिन आया। इस दिन मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। यूनिवर्सिटी की जिंदगी दिन बाद दिन बदलती जा रही थी। पहले मैं एक आम सी लड़की की जिसे शायद कोई खास नोटिस भी ना करता था, लेकिन अब मेरा जिक्र क्लासरूम से लेकर कैंटीन तक होने लगा था। कोई तारीफ करता, कोई हसद में तंज करता, मगर सबकी नजरें मेरे ऊपर रहने लगी। सोशल मीडिया ने मुझे वो मकाम दे दिया था जिसकी मैं हमेशा ख्वाहिशमंद रही। फॉलोअर्स की तादाद रोज बढ़ रही थी, कमेंट्स की भरमार होती और लड़कियां मुझसे फैशन टिप्स पूछने लगती थीं। उन सब बातों ने मेरे अंदर एक अनजाना गुरूर पैदा कर दिया था। मैं आईने में खुद को देखती तो लगता जैसे वाकई में खास हूँ। कभी सोचती शायद किस्मत ने अब मेरा रास्ता बदल दिया है, मगर किस्मत कभी सीधे रास्ते पर नहीं चलती, इसमें मोड़ और दचके छुपे होते हैं। वो भी एक आम सा दिन था। मैं हंसमामूल सुबह तैयार होकर यूनिवर्सिटी पहुंची। नीला साकरता और सफ़ेद शलवार पहन रखी थी, बाल खुले थे। आज मैं कुछ ज्यादा ही खुश थी क्योंकि पिछली रात मैंने एक नया एल्बम पोस्ट किया था जिस पर 2000 से ज्यादा लाइक्स आ चुके थे। यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर दाखिल होते ही मुझे अजीब सी कैफियत ने घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई मुझे देख रहा है। लड़कियां आपस में सरगोशियां कर रही थीं, कुछ लड़के नजरें मिलाकर फौरन हटाते। मैंने सोचा शायद ये मेरी पोस्ट की वजह से है, लोग तारीफ या हसद में मुझे देख रहे हैं। लेकिन जितना आगे बढ़ती गई इतनी ही ये कैफियत भारी होती गई। मैं क्लासरूम में दाखिल हुई तो माहौल और भी अजीब लगा। आम तौर पर सब हंसी मजाक में मसरूफ होते थे, लेकिन आज जैसे फिजा में संजीदगी की। कुछ लड़कियां मुझे घूर रही थीं, कुछ ने नजरें चरा लें। दिल में अजीब सी घबराहट जागी। अभी मैंने बैग रखा ही था कि मेरी करीबी दोस्त मरियम मेरे पास आई। इसका चेहरा संजीदा था, वो बिल्कुल वैसी नहीं लग रही थी जैसी आम तौर पर हुआ करती थी। इसने बगैर कुछ कहे अपना मोबाइल मेरे सामने कर दिया। ये क्या है? इसने हल्की मगर सख्त आवाज में कहा। मैंने हैरानी से मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखा। अब यही लम्हे जैसे मेरे जिस्म का खून खुश्क हो गया। स्क्रीन पर एक इंस्टाग्राम पेज खुला था, लेकिन ये मेरा पेज नहीं था। ये एक प्राइवेट पेज था जिस पर अजीब व गरीब अंदाज में लड़कियों की तस्वीरें डाली गई थी। मैंने गौर से देखा तो दिल जैसे किसी ने मिट्टी में जकड़ लिया। वहां मेरी अपनी तस्वीरें थीं, वही तस्वीरें जो मैं बुटीक के ट्राई रूम में खींचती थी। कुछ तस्वीरें वो थीं जो मैंने खुद अपलोड की थीं, लेकिन ज्यादातर वो थीं जो मैंने कभी किसी के साथ शेयर भी नहीं की थीं। वो तस्वीरें जिन्हें मैंने सिर्फ फोन की गैलरी में महफूज किया था, या वो लम्हे जब मैंने आईने के सामने कैंडिड शॉट्स लिए थे। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि इनमें से कुछ तस्वीरें ऐसे जावियों से ली गई थीं जिनसे मैंने कभी फोटो नहीं बनाई थी, जैसे कोई और मुझे देख रहा हो। मैं लर्ज़ उठी, मोबाइल मेरे हाथ से गिरने ही वाला था। दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ये सब यहाँ कैसे आया? मरियम की आवाज फिर सुनाई दी। इसकी आंखों में हैरानी नहीं बल्कि दुख और गुस्सा था, जैसे वो मुझे कसूरवार समझ रही हो। मैंने लरजती आवाज में कहा, मरियम ये मैंने नहीं डाला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मगर वो खामोश रही। इसके चेहरे पर वो यकीन नजर नहीं आया जिसकी मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्लास की बाकी लड़कियां भी अब करीब आने लगी थी, कोई सरगोशियां कर रही थी, कोई मोबाइल में वही पेज देख रही थी। सबके चेहरों पर हैरत, तंज और तजस्सुस था। मुझे लगा जैसे मैं सबके सामने नंगी खड़ी हूँ। मैंने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली, लेकिन हाथ इतने कांप रहे थे कि ढक्कन खुल नहीं रहा था। सहन जैसे किसी भनूर में फंस गया था। ये तस्वीरें कहाँ से आईं? मैं बार बार खुद से पूछती। मैंने तो ये सब किसी को भेजे नहीं, तो मेरे फोन तक किसी की रसाई कैसे मुमकिन है? ये सवाल मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। यूनिवर्सिटी का पूरा दिन मेरे लिए अजाब बन गया। हर कमरे, हर राहदारी में लगता जैसे सब मुझे ही देख रहे हैं। मैंने मरियम से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो भी टाल गई। शायद इसे भी लगा कि ये सब मैंने खुद किया है, या फिर वो डर गई कि कहीं इसका नाम ना जड़ जाए। घर वापस आई तो कमरे में दरवाजा बंद करके रोने लगी। आईने में अपनी सूरत देखी तो लगा जैसे मैं वो लड़की ही नहीं जो कल तक शोहरत की रोशनी में नहा रही थी। फोन ऑन किया तो नोटिफिकेशंस की भरमार थी, ना सिर्फ मेरे अपने पेज पर बल्कि
इस प्राइवेट पेज पर भी सैकड़ों लोग तस्वीरों को शेयर और कमेंट कर रहे थे, कुछ तारीफ कर रहे थे, कुछ भोंडे मजाक कर रहे थे और कुछ ऐसी बातें कि पढ़ते हुए ही इंसान का सांस रुक जाए। मेरे दिमाग में कई सवालात गूंजने लगे। आखिर ये तस्वीरें वहां कैसे पहुंचे? क्या मेरा फ़ोन हैक हो गया है या फिर ट्राई रूम में कुछ ऐसा है जिसे मैंने कभी महसूस ही नहीं किया? और अगर ऐसा है तो अब तक कितनी लड़कियां इस जाल में फंस चुकी होंगी? ये सवाल मुझे नींद से महरूम कर रहे थे। रात भर मैं जागती रही, हर छोटा सा शोर सुनकर चौंक जाती। मोबाइल बंद करने की हिम्मत नहीं हो रही थी और ऑन करने से खौफ बढ़ रहा था। अब ये दिन यूनिवर्सिटी जाने का हौसला मुझ में नहीं था, मगर माँ को शक ना हो इसलिए मैं तैयार हुई और घर से निकल गई। रास्ते भर दिल धक धक करता रहा, लगता था जैसे सब मुझे जांचने वाली नजरों से देखेंगे। कैंटीन में कदम रखा तो लड़कों की एक टोली जोर जोर से हंस रही थी। जैसे ही मैं गुजरी, एक ने कहा, अरे इंस्टा की सेलिब्रिटी आ गई। बाकी सब कह के लगाने लगे। मेरा दिल चाहा जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मैंने बार बार इस पेज को रिपोर्ट किया, लेकिन हर बार वही पैगाम आता, हम आपकी शिकायत का जायजा ले रहे हैं। लेकिन तस्वीरें तब तक लोगों की आंखों के सामने थी। मैंने किसी को कुछ बताया नहीं। माँ को कैसे बताती? वो तो मेरी जरा सी बात पर परेशान हो जाती। अब्बू को बताने की हिम्मत नहीं थी, उनके गुस्से से मुझे हमेशा डर लगता था। मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। इस वक्त मुझे सिर्फ एक बात का यकीन था, ये सब महज इत्तेफाक नहीं है। ये मेरी जिंदगी का पहला धचका था, लेकिन इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है। मेरी तस्वीरें सिर्फ अपलोड नहीं की गई थी, बल्कि किसी खास मकसद के लिए जमा भी की जा रही थी। और यही सोच मेरे दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों को बढ़ा रही थी। रात भर जागने के बाद जब सुबह हुई तो मेरी आंखें सूजी हुई थीं। आईने में खुद को देखा तो लगा जैसे कई दिन बीमार रही हूँ। दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, ये सब तस्वीरें कहाँ से आएं? आखिर किसने मेरी जिंदगी यूं बर्बाद करने की साजिश की है? यूनिवर्सिटी जाने का हौसला मुझ में नहीं रहा था, मगर पढ़ाई का बहाना करके घर से निकलना पड़ा। रास्ते भर में बार बार अपनी आंखों से आंसू पोंछती रही ताकि कोई पहचान न ले। इस दिन क्लास के बाद मैंने सीधा लाइब्रेरी के पीछे वाले कोने में बैठने का फैसला किया। वहां कम ही लोग आते कि मैंने मोबाइल खोला और इस प्राइवेट पेज को दोबारा गौर से देखने लगी। मेरी तस्वीरें मुख्तलिफ जावियों से थीं। कुछ वाज़े तौर पर वो थीं जो मैंने बुटीक के ट्राई रूम में खींची थीं, लेकिन कुछ तस्वीरें बिल्कुल अलग थीं, जैसे किसी और ने मुझे छुप कर देखा हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। दिल में खौफनाक सा ख्याल आया, किया इन ट्राई रूम्स में कैमरे लगे हुए हैं। ये सोचते ही मेरा दिमाग जैसे फटने लगा। अगर ये सच है तो सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि जाने कितनी और लड़कियां भी इसका शिकार बनी होंगी। मैंने फौरन गूगल पर सर्च किया तो बेशुमार खबरें सामने आ गईं। दुनिया भर में ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए थे जहां दुकानदार या मुलाजिमीन खुफिया कैमरे लगाकर वीडियोस बनाते थे। मेरा दिल धक से रह गया। तो ये सब महज वहम नहीं था, ये हकीकत हो सकती कि मैंने फैसला कर लिया कि मुझे खुद जाकर देखना होगा। अब ये दिन में एक मशहूर बुटीक पहुंची, वही जहां से मैंने रेड कलर का फराक पहना था और मुझे लगा था कि मेरी सबसे बेहतरीन तस्वीर बनी है। मैंने हंस मामूल 2 ड्रेस उठाई और ट्राई रूम में दाखिल हो गई, लेकिन इस बार मैं कपड़े ट्राई करने नहीं आई थी बल्कि हकीकत जानने आई थी। दरवाज़ा बंद करते ही मैंने कमरे को बगौर देखना शुरू किया। आईना, दीवारें, छत सब आम से लग रहे थे, मगर मैं जानती थी कि खुफिया कैमरे आम आंखों से नजर नहीं आते। मैंने मोबाइल निकाला और कैमरे की फ्लैश ऑन करके आईने पर डाला। एक लम्हे को मेरी सांस रुक गई। आईने के एक कोने में नन्हा सा नुक्ता चमक उठा। मेरा दिल कांप गया, ये कैमरा ही था। मैं फौरन कमरे से बाहर आ गई। सांसें बेकाबू थीं, हाथ लर्ज रहे थे, दिमाग में शोर मचा था। तो ये सब सच है? मेरी हर तस्वीर, हर हरकत, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। अब मेरे सामने तस्वीर बिल्कुल साफ थी। वो तमाम बुटीक जिनमें मैं रोज जाती थी, वहां के ट्राई रूम्स में खुफिया कैमरे लगे थे। वो कैमरे मेरी तस्वीरें और वीडियोस बनाते और फिर कोई उन्हें इंटरनेट पर अपलोड करता। लेकिन सवाल ये था, ये सब कौन कर रहा था और क्यों? इसी दिन शाम को जब मैं घर पहुंची तो मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। इंस्टाग्राम पर किसी अनजान प्रोफाइल से पैगाम था। पैगाम में लिखा था, हम जानते हैं तुम कौन हो, अगर मजीद तस्वीरें नहीं देखना चाहते तो हमसे ताउन करो। मेरा तो सांस ही रुक गया। मेरे हाथ से मोबाइल गिरने ही वाला था और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने दोबारा पढ़ा तो नीचे एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया था। दिल धक धक करने लगा। हिम्मत करके इस नंबर पर मैसेज किया, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? कुछ लम्हों के बाद जवाब आया, हम बिजनेसमैन हैं, तुम जैसी लड़कियों के पेजेस से हम कमा रहे हैं। अगर साथ दोगी तो तुम्हें भी फायदा होगा, वरना सब कुछ पब्लिक हो जाएगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये महज एक खेल नहीं था, ये एक मुनज़्ज़म जाल था। एक ऐसा जाल जो लड़कियों की मासूमियत और शोहरत की ख्वाहिश को इस्तेमाल करके उनकी जिंदगी बर्बाद करता है। मैंने सोचा, अगर ये सब मेरे घर वालों को पता चल गया
तो वो तो मेरा चेहरा भी ना देखेंगे। यूनिवर्सिटी में तो मेरी जिंदगी पहले ही जहन्नुम बन चुकी थी, अब अगर ये तस्वीरें आम हो गईं तो मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। ये ख्याल ही मेरा सांस बंद करने के लिए काफी था। इसी वक्त मरियम का ख्याल आया, वही मेरी दोस्त जिसने मुझे सबसे पहले ये पेज दिखाया था। मैंने फैसला किया कि सब कुछ इसे बताऊंगी और इससे मदद मांगूंगी। रात को मैंने इसे मैसेज किया और अब ये दिन कैंटीन में मुलाकात की। मैंने लरजती आवाज में सब कुछ कह डाला, ट्राई रूम्स, खुफिया कैमरे और ब्लैकमेलर का पैगाम, सब कुछ इसे बता दिया। मरियम ने कुछ देर खामोशी से सुना, फिर इसने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, तुम अकेली नहीं हो, हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, हमें साइबर क्राइम विंग जाना होगा। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक तरफ सुकून था कि कोई मेरा साथ देने को तैयार है, दूसरी तरफ खौफ कि ये सब करने का मतलब है अपने राज को दुनिया के सामने लाना। लेकिन मरियम ने मुझे समझाया, अगर तुम खामोश रहोगी तो वो लोग और लड़कियों की जिंदगी भी तबाह करेंगे। इसके अल्फाज मेरे दिल में उतर गए। हमने फैसला किया कि सबूत इकट्ठे करेंगे। मैंने वो स्क्रीन शॉट्स महफूज किए, ब्लैकमेलर के पैगामात और वो वीडियोस भी जो उसने शेयर की थी। ये सब करते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन अंदर कहीं एक अज़्म भी जाग रहा था कि मुझे ब्लैकमेल नहीं होना, मुझे खुद को इस दलदल से निकालना है। अब मैं डरी सहमी लड़की नहीं रहना चाहती कि मैं चाहती थी कि ये जाल टूटे, ये चेहरे बेनकाब हों। मेरे लिए वो दिन किसी क़यामत से कम ना था। मैं यूनिवर्सिटी के कैंटीन के एक कोने में बैठी थी, सामने लड़कियां हंस रही थीं, कुछ तो इशारे भी कर रही थीं। उनके हंसने की आवाज़ें मेरे कानों में ऐसी लग रही थी जैसे कांच के टुकड़े बार बार गिरते हों। मेरा दिल चाह रहा था जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मैंने खुद को संभालने के लिए पानी का गिलास उठाया, मगर हाथ कांप रहा था। इसी वक्त मेरा दोस्त हमजा मेरे करीब आया। वो आम दिनों की तरह पुरस्कौन नहीं लग रहा था, इसके चेहरे पर हैरत और दुख दोनों झलक रहे थे। इसने मेरा मोबाइल सामने रख दिया। ये सब क्या है? इसने धीमे लहजे में पूछा, जैसे इसे भी यकीन ना आ रहा हो। मैंने मोबाइल पर नजर डाली, मेरा दिल हलक में आ गया। वही तस्वीरें थीं जो मैंने ट्राई रूम्स में खड़े होकर ली थीं, लेकिन ये तो मेरे सोशल मीडिया पर अपलोड की हुई थीं। यहाँ मसला कुछ और था। अब इन तस्वीरों को किसी ने एडिट कर दिया था। कुछ में ऐसे तासुरात डाल दिए गए कि जैसे वो फाहिश हों, कुछ में कपड़ों को एडिटिंग के जरिए कम या ज्यादा कर दिया गया था, और ये सब मेरे नाम से मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स और यूनिवर्सिटी के फॉरम्स पर गर्दिश कर रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने बमुश्किल कहा, ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हमजा ने एक लम्हे को मेरी तरफ देखा, फिर सर झटक कर बोला, मैं तुम्हें जानता हूँ, मगर सबको कैसे समझाऊं? लोग देखने वाले हैं, मानने वाले नहीं। इसकी बात ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया। मैंने चाहा कि चीख चीख कर सबको बताऊं कि मैं कसूरवार नहीं, लेकिन जबान जैसे गंग हो गई थी। घर पहुंची तो हालात और भी खराब थे। अब्बू ने फोन पर किसी से बात की जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई वो मुझे तेज नजरों से देखने लगे। ये सब क्या है? उनकी आवाज कड़कदार थी। मैं लर्ज गई। अब्बू, मैंने कुछ नहीं किया, ये तस्वीरें किसी ने खराब की हैं। अम्मी मेरे करीब आए और धीरे से बोले, बेटा तुम्हें समझाया था ना कि सोशल मीडिया पर इतनी सरगर्मी अच्छी नहीं होती, मगर तुमने हमारी बात का मजाक समझा। अब देखो, बदनामी हमारे दरवाजे पे खड़ी है। अम्मी की आवाज में खफकी से ज्यादा दर्द था, लेकिन अब्बू का गुस्सा कम ना हुआ। वो बार बार कहते जा रहे थे, ये खानदान की इज्जत है, लोग क्या कहेंगे। मैं कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके रोने लगी। कमरे की दीवारों पर आंसुओं के छींटे गूंज रहे थे। दिल चाह रहा था सब कुछ खत्म हो जाए। अब ये दिन यूनिवर्सिटी गई तो सब कुछ बदल चुका था। कुछ लड़कियां मुझसे दूर हटने लगे, कुछ ने नजरें मिलाना भी छोड़ दें, और लड़के तो जैसे मौका ढूंढ रहे थे जुमले किसने के। क्लास में एक लम्हे को लगा जैसे सबकी नजरें मुझ पर जमी हुई हैं। मेरा दिल धड़क रहा था, हाथ पसीने से तर थे। उस्ताद ने भी एक नजर डाली और फिर पढ़ाने लगे, लेकिन मैं जानती थी कि वो भी खबर पा चुके हैं। इसी दिन एक लड़की सना मेरे करीब आकर बोली, तुम्हें पता है ये सब किसने किया? मैंने हैरत से कहा, क्या मतलब? वो सरगोशी के अंदाज में बोली, ये सब शाजिया ने किया है, तुम्हें याद है वो पिछले महीने तुमसे हसद करने लगी थी, तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ने लगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं चौंक गई। शाजिया मेरी अपनी क्लास फेलो थी, मैंने कभी सोचा भी न था कि वो ऐसा कर सकती है। इस लड़की ने अपने हसद की आग में मुझे जला दिया, मेरी इज्जत और वकार की धज्जियां बिखेर दे। इस रात मैंने फैसला किया कि अब खामोश नहीं रहूंगी। मैंने तमाम तस्वीरें जमा की, सना की बातों को जहन में रखा और फिर सबूत ढूंढने लगी। कई घंटे मेहनत के बाद मुझे एक प्रोफाइल मिली जो जाली नाम से बनाई गई थी। इस पर वही तस्वीरें थीं, वही एडिटिंग, और हैरत अंगेज तौर पर कुछ ऐसी तस्वीरें भी थीं जो मेरे मोबाइल में महफूज थीं, मगर मैंने कभी अपलोड नहीं की थी। ये देखकर मेरा दिल दहल गया, यानी शाजिया ने मेरा अकाउंट हैक किया था। मैंने अगले दिन आईटी डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर से बात की जो कंप्यूटर सिक्योरिटी के माहिर थे। उन्होंने जब मेरा मोबाइल चेक किया तो साफ कहा, तुम्हारा अकाउंट हैक हुआ है, लेकिन फिक्र मत करो, हम पता चला सकते हैं कि किसने किया है। 2 दिन की मेहनत के बाद
सबूत मेरे सामने के। वो जाली अकाउंट शाजिया के अपने ईमेल से लिंक था और आईपी एड्रेस भी इसके घर का निकल आया। मेरे आंसू थम ना रहे थे। मुझे दुख इस बात का नहीं था कि वो मुझसे हसद करती थी, दुख इस बात का था कि इसने मेरी इज्जत दांव पर लगा दी। मैंने सबूत हाथ में पकड़े और प्रिंसिपल के दफ्तर पहुंच गई। कमरे में दाखिल होते हुए मेरी टांगें कांप रही थी, लेकिन दिल में हिम्मत जमा की। प्रिंसिपल साहब ने तफसील सुनी, सबूत देखे और शाजिया को फौरन बुलवा लिया गया। जब सबके सामने सच्चाई खुली, शाजिया का चेहरा फक हो गया। इसने पहले इनकार किया, मगर जब सबूत सामने रखे गए तो वो खामोश हो गई। प्रिंसिपल ने सख्त अल्फाज में कहा, यूनिवर्सिटी में ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तुम्हें फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाता है। मेरे लिए वो लम्हा अजीब था। एक तरफ सुकून की सच्चाई सामने आ गई, दूसरी तरफ कर्ब कि मेरी इज्जत के साथ खेलने वाली वही लड़की की जिसे मैं कभी अपनी दोस्त समझती थी। यूनिवर्सिटी में हालात आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगे। कुछ लोग अब भी चुपके चुपके बातें करते थे, लेकिन हमजा और सना जैसे दोस्त मेरे साथ खड़े थे। उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और कहा, वक्त सबको हकीकत दिखा देगा। घर में भी माहौल नरम हुआ। अब्बू ने एक दिन मुझे पास बिठाकर कहा, बेटा हम तुम्हें बुरा नहीं समझते, लेकिन ये ज़माना बड़ा जालिम है। ज़रा सी गलती की कीमत इज्जत से चुकानी पड़ती है। मैंने सर झुकाकर वादा किया, अब्बू अब मैं सोशल मीडिया के पीछे अंधी होकर नहीं दौड़ूंगी। वक्त गुजरता गया। इस हादसे ने मुझे एक सबक सिखा दिया था। दुनिया के सामने अपने आप को जितना चाहो संवार कर पेश करो, मगर इज्जत और वकार सबसे बड़ा जेवर हैं। अब मैं यूनिवर्सिटी में पहले की तरह बेफिक्री से तस्वीरें नहीं खींचती कि मैंने सोशल मीडिया पर अपनी सरगर्मी महदूद कर दी, लेकिन हाँ, मेरा एतमाद लौट आया था, क्योंकि मैं जान चुकी कि सच कभी दबाया नहीं जा सकता। इस वाक़ये के बाद में बहुत अरसा लोगों से नजरें नहीं मिला पाई कि मेरे अंदर एक बेयकीनी फैल गई कि मैं हर वक्त सहमी सहमी रहती। कुछ हो जाने का डर हर वक्त लगा रहता। मैं यूनिवर्सिटी तो जाती, लेकिन कहीं छुप कर बैठ जाती। लोगों की नज़रों में मुझे अपने लिए तमस्खुर नजर आता। मैं कभी इस हालत से निकल ना पाती। अगर मेरी सहेलियां, मेरे उस्ताद और मेरे वालिदैन मेरा साथ ना देते, मेरी हिम्मत ना बढ़ाते, मुझे हौसले से जीना ना सिखाते, तो शायद मैं कब की खुद को ख़त्म कर लेती। लेकिन अब मैं एक भरपूर और पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हूँ, क्योंकि इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं था। अगर कसूर था तो इतना कि मैं भी खुद को मनवाना चाहती थी और आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरा तरीका गलत था और यही बात मैं समझ गई थी। लोगों की नज़रों में खुद के लिए सताइश देखना एक नशे जैसा था, लेकिन उन्हीं लोगों की नज़रों में खुद के लिए नफरत और घटियापन देखना कैसे रूह को काट देता है, ये मैंने महसूस कर लिया था। लेकिन मुझे खुद पे फख्र है कि मैंने खुद को हालात के धारे पर नहीं छोड़ा, बल्कि हिम्मत से मुकाबला किया और अपनी ज़िंदगी को बेहतर किया। नाजरीन, मजीद इस तरह की सबक आमोज कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।